to prevent your injuries. Okay, so football is a game जिसमें हर एक प्लेयर को अपना बेस्ट देना पड़ता है, because it's a team sport. Even if one player doesn't perform well, then there is a risk of the team that they won't win. So every team has to work together, every player has to work together for their team to win. Hard work and your training is very important, but nutrition plays a very important role for you guys to reach your for you guys to reach your 100% and give your best when you're on ground and playing. So how can nutrition help you guys? So nutrition will help you to enhance your performance. It will improve your recovery. It will increase the energy. It will delay your fatigue, and it will reduce the risk of injury. And today we are going to see how can nutrition will help you guys prevent injury. So let's begin. Yeah. So, so football is a game where players get injured quite frequently because of the combination of high speed and they are in contact. So they are at high risk of getting injured. So some of the common injuries are your knee injuries, shoulder injuries, concussion, and concussion can be like you have headache, you have your dizzy, you feel dizziness, you feel nauseous, your balance is not well. Then there is low back pain and back pain. So it can generally happen because of overuse of particular part. So if you have not recovered well, you won't be able to perform better. And if you're overusing the same muscle or same part of your body, then it will cause injury. Then it's heat injury. Heat injury can be your cramps or heat stroke, which it's because of dehydration, and we'll see further in detail. Then, now, how can you guys prevent injuries? So, it depends on three factors. So, that are nutrition, hydration, and your sleep. Okay. So, all these three comes together to prevent your injury. So, let's see how this nutrition will help you guys prevent injury. So, basically, if a player is under eating, then what will happen? He won't get proper energy. He won't be able to perform well because his energy level will be dropped. His muscle recovery will be not up to the mark. And so there are high risk of the players getting injured. Second, if you are overeating, so if you are overeating, then there are chances your body fat will increase, and because of that, you won't be able to perform better because heavy body हो जाएगा तो आप भाग नहीं पाओगे ठीक से. Your reaction time will hamper. You won't be able to pass the ball fast, and and also because of the heavy body, there are high risk of getting injured. So now energy demands of football players. So, football is a very physically demanding game. According to a research paper, during your 90 minutes of gameplay, a player can burn 1,500 to 2,000 calories in just 90 minutes. So, it's very important that you're having proper energy, like calories, throughout the day. Okay, so because of your vigorous training and competitive games, it's very important to give proper energy to your body, but the energy requirement of each player is different. I cannot tell you that you all guys need to have 3,000 kilocalories every day, because your goal is different, your training intensity is different, your duration of your time to, like, how much time you're training is different, and also your positions are different. So we need to consider all of it, and a personalized plan should have to be made according to your needs. Now, macronutrients for footballers. So there are three macronutrients that are your carbohydrates, proteins, and fat. So carbohydrates basically is very important for footballer, as is the main source of energy. It helps you to promote recovery between the games,
Not only that, it helps to increase your muscle glycogen. It also delays the onset of fatigue on the ground, and it also helps you, it gives the energy to sprint even when there is last few minutes left and you need that so much energy to just kick that right ball, like ball and the right, just to score your goal. So for that, carbohydrates play a very important role. Now, protein. We all know that protein will help you to build and repair your muscles. It also help you to recover by preventing muscle breakdown. But it's also important to have right quality of protein at the right time. अगर आप कभी भी कोई भी टाइम पे प्रोटीन खाओगे तो it won't help, because right time पे जाना चाहिए. Now we'll see how it will, what is the right time and what is the adequate protein you need to have. Now, fat. बहुत लोग, many of my athletes also say कि हम लोग fat avoid करते हैं because हम मोटे हो जाते हैं. But it's not correct. You need to have good quality of fat. But what we do is we just have all junk food like bada pav, French fries, and all unhealthy, जिसमें जो fat हमको body को नहीं चाहिए वो जाता है. But you need to have good quality of fat, that is your almonds, walnuts, coconut, avocado, your seeds like sunflower seed, flax seed. ये सब में ओमेगा 3 होता है जो हेल्प करता है अब हम लोग को to improve your performance and also to help in recovery when you are injured. So recommended fat intake should be less than 30% in your diet, because ज़्यादा हो जाएगा then it will be again a issue, because fat gain होता है. Okay. Next, to periodize your meal. So it's very important to know when to eat what carbohydrate, like how much to eat carbohydrates at what time. ऐसे नहीं कि आप जो on season में खा रहे हो वो off season में खाना चाहिए, because then it won't work well. So when you are when you have on season, like high intensity training session जब भी होता है, तभी आपके बॉडी को 7 to 10 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट अपने एवरी डे कार्बोहाइड्रेट्स जाना चाहिए. और जब आपका लॉन्ग एंड्योरेंस ट्रेनिंग सेशन होता है या फिर रिकवरी सेशन होता है या फिर जब रेस्ट डे होता है, तब कार्बोहाइड्रेट्स हमें कम लेने चाहिए, बिकॉज तभी हमारे बॉडी को इतनी एनर्जी नहीं चाहिए होती, बिकॉज यू आर जस्ट रेस्टिंग. Okay, so that time you need 3 grams per kg body weight per day. Similarly, in protein also, when you're doing in high intensity training, or if your goal is fat loss but you need to maintain your muscle, then you need 1.8 to 2 grams per kg body weight per day protein. And when there's your recovery session होता है और जब भी off season होता है, that time you need to reduce your protein intake from 1.2 to 1.5 gram per kg per day. Okay. So now we are going to talk about pre-training, during training, and post-training. So these three things are very important for the players to avoid injuries, because they are, so let's see. So first, 45 to 1 hour before your training, you need to have moderate pace releasing food. तो क्या होता है मॉडरेट, जो अपनी बॉडी में स्लोली रिलीज करता है, जब तक हम लोग को खेलने का टाइम आएगा तब तक इट विल रिलीज स्लोली इन आवर बॉडी, एंड दैट आर फ्रूट्स लाइक ऑरेंज, एप्पल, ड्राई फ्रूट्स लाइक डेट्स, फिग, ओट्स porridge and milk. Now this आई एम टॉकिंग अबाउट ड्यूरिंग ट्रेनिंग मील. तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग मील कब होता है? व्हेन योर ट्रेनिंग इज मोर देन 1 hour. So it's like अभी 2 घंटा ट्रेनिंग है आपका, तो that time you need something fast releasing, because you are on the field and you need something that will give you instant energy so that you can continue your game. Okay, so तभी we will give dates, fig, banana. So this I'm talking about meal. We'll see what you can drink afterwards. So now this during training meal depends on your training intensity and duration of your training. Okay, and then last thing is, immediately you have to have post training. I have seen many of my athletes, what they do is they are having their post training, but they are not having it at proper time.
तो क्या होता है, देयर इज अ विंडो आफ्टर योर ट्रेनिंग, द विंडो ओपन्स, और वो विंडो के अंदर वो ही टाइम, सो विद इन 15 to 30 minutes immediately after your training you need to give your body the food. And what is it? Carbohydrates and protein. So if you are not giving that proper carbs and protein at the right time, then there is of no use. Your muscle will not recover, your energy level will be low, and you won't be able to perform better for your next session. So it's very important to give carbs like banana, dates, fig, pineapple, nuts. So they are all fast releasing, like they digest in our body fast, and they will give you the fast energy. And also we need to give high biological protein. So that is your eggs, whey protein, and milk. So eggs are absorbed fast in our body as compared to milk. But if you're a vegetarian, then milk is also a good option. So second, now we are going to talk about hydration. So importance of hydration. So if our body is dehydrated, then there will be reduction in our blood volume. So what will happen? So जो blood जो हमारे body में pass होता है, वो properly pass नहीं होगा. So वो that will affect our muscles का जो work करने का होता है ना, वो अपना blood help करता है, so that you get proper energy. But if you don't, if you're dehydrated, then that won't happen. Then second thing will be there's decrease in sweat rate, increase in core temperature, और हमें थकान भी ज्यादा होगी. You will feel tired more. Now, a study has shown that a sweat loss equal to even 2% of your body weight can cause decrease in physical and mental performance. So now we'll see what's the sign and effect of dehydration. So the signs of dehydration will be dry mouth, muscle cramp, dark shade urine, fatigue, and dizziness. And that will cause, give an impact in your decision making skill, concentration, cognitive impairment, and increased risk of injury. You can keep a check on your hydration status by simply checking your urine color. Lighter the urine color, more hydrated you are, and darker the urine color, more dehydrated you will be. So here is a hydration strategy which you can follow. So 2 hours before your training, have 500 ml water. 15 to 20 minutes before your training, have 120 to 150 ml of water. During training, keep sipping water as much as possible whenever you get time. And you can also consume nimbu pani, sports drink, electrol along with your water. Now, post training, see that you have 500 ml water immediately after your training, as your body will be quite dehydrated. Last, sleep. Sleep is something which is least important. Nobody gives importance to sleep. Okay. Nowadays, we all are staying awake because of lockdown and anything. And I asked my athletes that how many hours do they sleep. So generally, what they say is, I sleep 5 hours at night, and total they say 7 hours, but they just sleep 5 hours at night, and dusra 2 ghanta they sleep in afternoon. But it's not that. You need to sleep 7 to 8 hours throughout, like full night. ऐसे half करके 7 hours नहीं होता, because all the recovery of the organs like your muscle, also of your muscles, tendons, ligament, bone, will happen at night. अगर आप सुबह सोओगे तो it won't happen, because our body is functioning like that. It has everything, every recovery will happen at night. So if you're not having sleep, then there is a risk of overuse of injuries. You won't be recovered well. And sleep also impact your reaction time, which is very important for athletes, especially footballers. So this is a picture which I found out from a research paper. So you can see that the when the kids are sleeping for 5 hours, 6 hours, 7 hours, 8 hours, niche, and this is the risk, how much the risk they are at.
So as you can see, 5 hours, 6 hours wale and 7 also, but are at a high risk of getting injured as compared to 8 and 9 hours. So it's very important that you sleep well at night so that your body can recover properly. So lastly, I would like to conclude by take home message. So to prevent injury, you need to follow 3 things: proper diet, hydration, and sleep well. It's important to keep sipping fluid at regular intervals and keep checking your urine color to know whether you are hydrated or not. Take proper pre, during, and post training meals as it plays important role to improve your performance and prevent from injury. It's important to sleep at least 7 to 9 hours for body to recover for next session. Thank you. So guys, कोई question है आपको? मैम जो हमारा प्रोटीन इंटेक होता है बॉडी का, एक हाँ विष्णु. Okay मैम guys, द प्रोटीन इंटेक दैट एक मिनट विशु, एक मिनट रुक जाओ. कोई भी जिसको भी क्वेश्चन है, जस्ट गिव दैट रेज हैंड जो होता है उसमें. सो मैम विल गोना कॉल his or her name और जिससे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. So let's start from with Vishu. Go on Vishu. मैम द प्रोटीन कंजम्पशन एंड द रिक्वायरमेंट नीडेड फॉर एनी एथलीट इज एनी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ बॉडी बिल्डर, या फिर सेम होता है दोनों का? क्योंकि अगर कंसिडर किया जाए तो द प्रोटीन अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर एनी जिम गोइंग पर्सन इज अराउंड 2 ग्राम प्रोटीन्स 1 ग्राम प्रोटीन पर एलबीएस ऑफ बॉडी वेट. सो मैम हमारा जो एथलीट होते हैं जितने भी फुटबॉल में, हमारा भी सेम होना चाहिए या फिर थोड़ा डिफरेंट हो सकता है? So देखो जो जिम वाले हैं, they are like sedentary, okay? If you are talking about bodybuilders, then it's kind of a sport if they are taking part in bodybuilding competition, okay? So that is a type of a sports like nowadays. But for athletes like you guys, it's obviously different from the gym going person, like a sedentary gym going person, because unka protein intake will be around 0.8 grams to 1.5 max, okay? But you guys have lot of training, like you guys train 2 times in a day, so obviously your needs are different. So you will need more protein as compared to some gym going person. Thank you, ma'am. Yeah. Next, Atish. Yes, ma'am. Yeah. Ma'am, actually I'm very lean, ma'am. So in order to gain weight, what are the foods can I take frequently, ma'am, during a day? So first of all, see that you are at least having 5 to 6 meals in a day. ठीक है? सिर्फ 3 meals से कुछ नहीं होएगा. You need to have at least 5 to 6 meals, and in every meal see that you are having proper protein. Okay? अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो एटलीस्ट आपके 3 जो मेन मील्स है ना, उसमें आपको चिकन, फिश या फिर यू कैन हैव स्प्राउट्स और एग्स, कुछ भी मेन जो प्रोटीन है आपके मील में होना चाहिए. ओके? और दूसरा, आपके जो स्नैक्स है उसमें भी आपको थोड़ा हेल्दी फैट्स प्लस प्रोटीन होना चाहिए. सो इट शुड बी लाइक दैट कि आप कोई भी मील स्किप करोगे तो ऐसे नहीं चलेगा. सो सपोज आपकी एनर्जी एक्सपेंडिचर ज्यादा है, ओके, यू आर डूइंग लॉट ऑफ एक्टिविटी, तो आपका जो खाने की कैलोरीज है उससे ज्यादा होनी चाहिए, because you don't want to burn your calories, because you want to store it so that you have muscle gain in your body. Yes, ma'am. तो अभी आप कितने मील्स खा रहे हो? Ma'am, 3 or maximum 4, ma'am. Exactly. So you need to have at least 5 to 6 meals. And I'm not including your pre-training and post-training. Ma'am,
is there, should we, what to tell, ma'am? Should we intake specific grams of protein, ma'am? हम इनटेक कितना आना चाहिए आपके प्रोटीन का? That is your No, ma'am. question? No, I'm asking whether is there a particular amount of protein we have to intake, ma'am? Some people tell you have to take 25 grams of protein. If you are like this, according to your weight, you have to have like this type of protein, ma'am. So no. So they are calculating your protein. Now you are an athlete. So and you Ma'am. want to gain your muscle that I showed in your in that slide. Then you need to have around 1.8 to 2 grams per kg body weight every day in your diet. Are you understanding? Okay. Yeah. Yes, ma'am. Yeah. So it has to be calculated, and then then a plan should be made. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome. Ishan? हेलो Hi. मैम, इंजरीज के बीच में मैम कौन सा प्रोटीन मैम हमें फूड खाना चाहिए मैम? अगर हमें इंजरीज है तो उसको हाँ. उसके बीच में क्या खाएं मैम कि रिकवरी जल्दी हो? Okay. So basically, अगर आपको इंजरी है, पहले you have to see that कि आपकी कैलोरीज इनटेक जो है ना, वो आप जो ऑन सीजन से खा रहे थे वो थोड़ी कम हो, बिकॉज अगर आप उतना ज्यादा खाओगे then there are chances you might increase your weight. सेकेंड, जो प्रोटीन आप बोल रहे हो ना, तो आपको अभी आपको चिकन, आपकी लीन मीट हो गया या फिर फिश हैज ओमेगा 3 जो आपको हेल्प करेगा रिकवरी के लिए, because it decrease your inflammation. Okay, then secondly you can include healthy fats in your diet. जैसे मैंने आपको बोला कि नट्स हो गया, सीड्स हो गया, कोकोनट हो गया, वो सारे वो हेल्प करेगा आपके रिकवरी में, एज वेल एज जो प्रोटीन मैंने बोला हर एक मील में होना चाहिए आपके, विच विल हेल्प योर मसल्स टू रिकवर एंड ऑल्सो योर बॉडी टू रिकवर, मतलब वो जो वेयर एंड टेयर करता है उसके लिए. ओके मैम. हाँ. और मैम इंजरी के बाद मैम गेम कैसे स्टार्ट करें? इंजरी के बाद कैसे चालू करें? ओके, सो बेसिकली आपकी जो कैलोरीज है तभी कम हो जाएगी, तो स्लोली अगर अभी आप फुल फ्लेज ट्रेनिंग तो स्टार्ट नहीं करने वाले हो आपके इंजरी के बाद, इट विल बी स्लोली. सो सिमिलरली स्लोली आपको आपका इनटेक बढ़ाना है, बट सी दैट यू हैव योर प्री एंड पोस्ट ट्रेनिंग मील प्रॉपरली एट प्रॉपर टाइम, so that वो properly आपको वो रिकवरी भी मिले and you will be better. थैंक यू मैम अपना Yeah. सॉरी मैम, अपना ये स्क्रीन जो आपने शेयर किया है ये बंद कर दो, सो दैट आई कैन सी एवरीबॉडी. हाँ चलेगा मैम, कंटिन्यू प्लीज. So now Abhishek. एक्चुअली मैम मेरी क्या है, ट्रायंगल शेप बॉडी है, मतलब मेरा सारा फैट मेरी थाइस पे जाता है, तो उसे कैसे करें, मतलब कम करें थाई फैट को? So थाई फैट के लिए आपको एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा along with your diet. ठीक है, तो आई एम श्योर वो कर रहे होगे आप. तो अगर हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि आप सिर्फ एक्सरसाइज ही कर रहे हो और डाइट आपका ठीक से नहीं हो रहा है. ओके, सो वो दोनों भी साइड बाय साइड होना चाहिए, एक्सरसाइज एंड योर डाइट. इफ यू आर डूइंग बोथ टुगेदर देन यू विल सी द इफेक्ट. तो मैम कैलोरीज कितनी लेनी चाहिए थाई फैट के लिए? ओवरऑल बॉडी नहीं, सिर्फ थाई मतलब? वो मैं ऐसे नहीं बता सकती क्योंकि मुझे आपका पूरा डिटेल लेना पड़ेगा, देन ओनली आई कैन टेल यू कि आपको कितनी कैलोरीज खानी चाहिए और क्या आप रॉन्ग कर रहे हो. तो मैक्स टू मैक्स मैम मेरी 6 फीट हाइट है. ओके. यस मैम, तो मैं रेगुलर वन डे में 2000 कैलोरीज बर्न कर लेता हूँ. बर्न कर लेते हो, आपको पता है? हाँ एक्चुअली मेरे पास वॉच है. अच्छा, ठीक है. तो मैम कितनी कैलोरी इनटेक कर सकता हूँ मैं अभी? तो अगर आपको अभी लूज करनी है ना,
कैलोरीज सॉरी फैट Yes, लूज ma'am. करना है ना, तो अभी सी दैट कि आप 1800 कैलोरीज जितना खाओ। 1800. हाँ, जो अभी आप तो बर्न कर रहे हो उससे कम खाओगे ना, तो दैट विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर बॉडी फैट। okay ma'am, thank you. वेलकम। मैं बोलता हूँ एक चीज इस चीज में फ्रॉम हाँ। माय एक्सपीरियंस। सो गाइस, जो आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं समथिंग लाइक रिलेटेड टू पर्टिकुलर यू नो, जैसे अभी थाइज वाली बात हुई है एंड इंजरीज वाली बात हुई है, सो आई वुड से यस, डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट योर वर्कआउट प्लेज ऑल्सो 50-50 तो मैं बोल सकता हूँ, बट थिंग इज लाइक योर प्रायोरिटी शुड बी योर वर्क। पहले उतना करना है आपने। अब तुम्हारा जो थाई वाली बात कर रहे हो, अगर तुम्हारा सिर्फ थाइज में ही जा रहा है, सो आई सजेस्ट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, आई एम नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट, बट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई एम सेइंग कि आप उसी थाइज मसल में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें, फोकस। not about weights, but like timing wala ho gaya, and like when you are working on increasing the strength, not the power, strength. So like lightweight exercises, but going more repetitions and less rest time. So एक circuit trainings वगैरह भी होती है. So guys, this kind of session जो अभी हम चल रहे हैं, जैसे मैंने 2 पहले लिए और आज मैम ने लिया है, और पर्टिकुलर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह है, so let me tell you in between कि these are the sessions to give you, a reason to trust us कि हम लोग किस लेवल का काम कर रहे हैं. So later on, अभी हमारा जो ऑनलाइन कोर्स आने वाला है, जिसमें हमारे जितने भी कोचेस वगैरह हैं, they will be joining and taking classes in a group of 12 or 14. So and it definitely gonna be a paid one, but इतना चार्ज नहीं होगा कि आप लोग अफोर्ड ना कर सको. सो डेफिनेटली ठीक है. सो ऑफ कोर्स जैसे तुम्हारी पर्सनल जो प्रॉब्लम है, इंडिविजुअल जो प्रॉब्लम है, सो डेफिनेटली इट विल बी गोज एंड ट्रीटेड इंडिविजुअली इन अ प्रोफेशनल वे. ओके, कैरी ऑन. whosoever next man. आशीष. आशीष, यू आर म्यूट. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. मैम, जैसे कि आपने प्रेजेंटेशन में बताया कि जो हमारा पोस्ट वर्कआउट मील होना चाहिए वो 15 to 30 मिनट के अंदर अंदर हमें ले लेना चाहिए. तो मैम ऐसा क्यों, मतलब क्या साइंस या क्या है इसके पीछे, ऐसा क्यों? सो एग्जैक्टली, सो वो एक विंडो होता है जो ओपन रहता है. तो तभी अगर आप अपनी बॉडी को फ्यूल करोगे कार्ब्स और प्रोटीन के साथ, तो वो बॉडी फास्ट एब्जॉर्ब करेगी. उसके बाद तो आपका रिकवरी मील वगैरह आएगा 2 घंटे के बाद, ठीक है. लेकिन वो 15 to 30 मिनट्स के अंदर जो आप जाओगे दोगे ना, तो उससे आपकी रिकवरी फास्ट होगी. आप ऑब्वियसली आप थके हुए हो, आपके पास एनर्जी बिल्कुल भी नहीं होगी इतना ट्रेनिंग करने के बाद. तो ऑब्वियसली आपके बॉडी को वो फ्यूल तो जाना चाहिए ना, सो दैट यू फील प्रॉपर. जो फटीग आपको हुआ है वो रिकवर करने के लिए यू नीड टू गिव समथिंग. अगर आप कुछ नहीं खाओगे तो बॉडी चला लेगा, ऐसे नहीं कि नहीं चला लेगा, वो चलाते 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 रहेगा. लेकिन आफ्टर अ पॉइंट योर बॉडी वोंट बी एबल टू डू. तो तब भी आपका रिस्क ज्यादा हो जाएगा इंजरी के लिए, एज वेल एज कि आपकी बॉडी वो जो नेक्स्ट सेशन के लिए वो फ्रेश नहीं होगी. आप तो थकान रहेगी, आपको आपके मसल में ज्यादा सोरनेस रहेगी. सो दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो वो विंडो जो भी खुलता है बॉडी का, व्हेन यू हैव टू गिव ऑल द प्रॉपर कार्ब्स एंड प्रोटीन, तभी आप प्रॉपर्ली उनको दो खाना. समझ रहे हो? आप ले रहे हो पोस्ट ट्रेनिंग बराबर से? क्या आप लेट लेते हो? मैम अभी तो मैम वर्कआउट नहीं चल रहा, तो मैं ज्यादा कर नहीं पाता, तो इसलिए. यस, थैंक यू मैम. वेलकम. मानव. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. मैम, मेरे को ये पूछना था कि जो हमारी डाइट होती है मैम, मतलब ट्रेनिंग के बाद, उसमें मैम मतलब हमें कौन सी चीजें इनटेक करनी चाहिए, मतलब जो है आफ्टर योर ट्रेनिंग, मतलब इमीडिएटली ट्रेनिंग के बाद में?
मैम दोनों, इमीडिएटली भी और फिर बाद में भी। तो इमीडिएटली मैंने जैसे बताया, आपको प्रॉपर फास्ट रिलीजिंग कार्बोहाइड्रेट लेना है और प्रोटीन लेना है, जैसे कि फास्ट रिलीजिंग कार्ब्स जैसे कि आपके डेट्स हो गए, बनाना हो गया, फिग हो गया, रेजिन्स हो गए, पाइनएप्पल भी होता है, इट हेल्प्स इन रिकवरी। तो ये सारे कार्ब्स plus you need to add a protein that can be your eggs, your milk or your whey protein. Okay, तो ये दोनों चीजें इमीडिएटली देनी है। एंड आफ्टर दैट 1-2 आवर्स के बाद अगर आपका मील है, सपोज आप यू आर डूइंग इवनिंग ट्रेनिंग और उसके बाद आपका डिनर है, तो सी दैट उसमें हम लोग को चाहिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स कार्ब स्लोली रिलीज करता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स हमें रिकवरी के लिए हेल्प करेगा। जैसे यू कैन ऐड सम स्वीट पोटैटो इन योर डाइट, राइस हो गया, जैसे यू कैन हैव पास्ता, रोटी, ये सारी चीजें कॉम्प्लेक्स है और सब दैट आर कॉम्प्लेक्स एंड दैट विल हेल्प इन योर रिकवरी। एंड ऑल्सो प्रोटीन इज इम्पोर्टेंट, लाइक चिकन, फिश, योर पनीर, स्प्राउट, ये सारे फास्ट एब्जॉर्ब नहीं करते अपने बॉडी में, ये सारे स्लो है। जैसे केसिन कैसा स्लो है प्रोटीन, इट विल स्लोली रिलीज इन अवर बॉडी एंड वो रिकवरी के लिए हेल्प करता है। सिमिलरली चिकन, पनीर, योर फिश, दे आर स्लो absorbing in your body and that will help you post recovery के लिए, post training recovery. ओके एंड मैम प्री रिकवरी के लिए मैम, मतलब जो हम ट्रेनिंग करते हैं उससे पहले क्या लेना चाहिए मैम? प्री ट्रेनिंग मैंने आपको बताया कि 1 hour to 45 minutes पहले आपको अगर स्लो मतलब मॉडरेट रिलीजिंग फूड चाहिए होता है, सो दैट वो स्लोली रिलीज करे आपकी बॉडी में एनर्जी, क्योंकि अगर आप जब भी फील्ड में होएंगे तभी वो आपको हेल्प करेगा। Okay, so that time you can have your porridge, you can have apple, orange, और you can have a oatmeal, या फिर आप ब्रेड और पीनट बटर ले सकते हो। So that will help you to give energy before your training session, so that बीच में आप थक ना जाओ या फिर आपको भूख ना लग जाए, उसके लिए। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। गाइस, आप लोग ने अगर स्टोरी ली है तो प्लीज शेयर करना, और सर को, कोच बेदी और मुझे न्यूट्रिशन बाय केएस प्लीज टैग करके डालना। श्योर मैम। और कोई क्वेश्चन है? हाँ लियो। गुड मॉर्निंग मैम। मैम ये जो अपने सेकंड स्लाइड में बताया था मैम, जो कार्बोहाइड्रेट है जो लॉन्ग डिस्टेंस जैसे कि इंड्योरेंस में कम लेना चाहिए और हाई इंटेंसिटी में ज्यादा, मैम उसके पीछे रीजन क्या मैम? तो बेसिकली जब भी हम लोग का हाई इंटेंसिटी वर्कआउट रहता है, ठीक है, तो तभी आपकी एनर्जी नीड्स बहुत ज्यादा होगी, बिकॉज आप बहुत अपना बॉडी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज के लिए यूज कर रहे हो। ओके, और एंड्योरेंस जब भी करते हो तभी आपको चाहिए कि आपका एंड्योरेंस बढ़े, तो तभी क्या होएगा, जो आप तभी वो टाइम पे लो कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब कम कार्बोहाइड्रेट का इंटेक होगा, तो बेसिकली वो आपकी बॉडी में कार्ब्स खत्म हो जाएगी, तभी आपको फैट यूज होएगा। सो जनरली एंड्योरेंस इज बेसिकली पीपल यूज टू इम्प्रूव देयर एंड्योरेंस, मतलब जो अपनी स्टेमिना होती है वो बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं, एज वेल एज टू इम्प्रूव फॉर योर फैट लॉस। ओके, सो अगर आपको सपोज फैट लॉस करना है तो आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहे हो, तो उसके लिए आपकी बॉडी को फैट यूटिलाइज होएगा एंड दैट विल हेल्प यू इवन फॉर फैट लॉस, इसके लिए। और एंड्योरेंस भी बढ़ेगा बिकॉज वो आपका बॉडी स्टोर्ड मतलब आपका बॉडी विल, यू आर ट्रेनिंग योर बॉडी टू यूज योर कार्ब्स फॉर योर एंड्योरेंस के लिए व्हेन यू आर डूइंग एन एंड्योरेंस ट्रेनिंग। ओके, थैंक यू। हाँ, मेसी द गॉड। मैम मैं ये कह रहा था कि मैम आज के जो आपने नोट्स दिए थे ना, वो मैम हमारे को मिल सकते हैं क्या, जो आपने दिखाया था मैम, ताकि मैं थोड़ा अपने वे में पढ़ सकूं आराम से।
So mute हो आप. मैंने कहा ही मैसेज मी. मैसी आपने, मैसी नाम क्या आपका? मेरा नाम सर यशवंत है. यशवंत, अपना नाम चेंज करना तो बढ़िया रहेगा. तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं मैम से डिस्कस करूंगा बिकॉज मैम की प्रेजेंटेशन है. सो डेफिनेटली मैम प्रेजेंटेशन तो नहीं, नोट्स जरूर दे सकती है, इतना तो मुझे पता है. सो आई विल टेक इट एंड आई एम गोना शेयर इट विद यू. क्या मैं सबको ग्रुप में शेयर कर दूंगा. सो इट वुड बी हेल्पफुल. आप आराम से पढ़ सकते हैं. ठीक है, थैंक यू सर. थैंक यू. ओके. नेक्स्ट, जयदीप, कोई प्रॉब्लम नहीं है डाइट में? ये फ्रीज हो गया क्या? फ्लाइट में उड़ रहा है क्या? नो सर, एवरीथिंग ओके. चलो बढ़िया. जयदीप तो he is already part of our this online classes. इसकी तो वैसे ही चल रही है और मैम के साथ तो मेरे ख्याल से डिस्कशन हो गया होगा. And he is already following diet plans and everything. उसका I think one coach is helping him also. विशु हो गया है. शिवांग नामग्याल, any problem? कोई क्वेश्चन है? हो सर. क्या बात है, बढ़िया है. ओके, सबने पूछ लिया लगभग, आई थिंक सो. ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? मनीष? नो सर. क्या बात, तो हमेशा कुछ समझा आपको? तो कुछ समझता है पूरा, पूछता ही नहीं कुछ. गाइस आप लोग को समझाना, लाइक आप फीडबैक यस मैम, समझ में जरूर आया बट मैं थोड़ा सा फोकस स्टडी करेंगे नोट्स में तब. ओके, या we will share you the notes, don't worry. And guys, जितने भी यहाँ पर हैं, I like it. मेरे ख्याल से I think almost 90% वही लोग हैं जो कल भी थे. And I believe आगे भी तुम see, इस चीज से दिखता है कि how much serious you guys are about your game. है ना? अभी ये सब excuses होते हैं क्योंकि जब हम YouTube देखते हैं, Instagram चलाते हैं या कुछ डाउनलोड करते हैं तो आराम से उस टाइम तो इंटरनेट चल रहा होता है. और जब ऐसी चीजें होती है क्लासेस वगैरह, उस टाइम या तो इंटरनेट स्लो हो जाता है या फिर उनका डेटा खत्म हो जाता है. सो दिस शोज कि आप लोग कितने सीरियस हैं एंड आई रियली लाइक इट. एंड फीडबैक, एज अ फीडबैक, जैसे आज मैम ने अभी पूछा है, सो कल भी मैंने पूछा था, पता नहीं किसी ने दिया नहीं, एक दो ने दिया सिर्फ. So I would like, it would be, हम तुमसे क्या चाहते हैं, सिर्फ फीडबैक इसलिए मांगते हैं कि हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए कि हमने काम अच्छे से किया नहीं किया, हमने इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करी है was it helpful or not, you are growing or not. नहीं तो वेस्ट ऑफ टाइम हमारा भी और तुम्हारा भी. सो आप फीडबैक जब देंगे तो एटलीस्ट इट विल हेल्प अस टू ग्रो एज वेल. ठीक है, सो आप ग्रुप में डेफिनेटली इंडिविजुअली थोड़ा सा give your feedback, it would be nice. और स्टोरीज में शेयर करो तो अच्छा रहेगा क्योंकि हमें भी ग्रो करना है, आपको भी ग्रो करना है. आप टैग करेंगे तो हम आपको भी शेयर करेंगे और आप शेयर होंगे तो ऑब्वियसली पीपल विल कम टू नो आल्सो. ठीक है. सो सर एक क्वेश्चन था. जयदीप, हाँ जी पूछो. सर आप मतलब दोबारा क्लास लोगे अटैकिंग प्रिंसिपल और डिफेंसिव प्रिंसिपल में? सर मतलब थोड़ा और डीप मतलब उसमें. हाँ, तेरे को तो मिल जाएगी क्लास, तो यू तो ऑलरेडी ज्वाइन दिस क्लासेस लॉन्ग बैक, तो कब से जुड़ा हुआ है हमसे. सो जयदीप एंड दक्ष और एक परिचित तो है नहीं यहाँ पर, एंड शिवांग नामग्याल ऑल्सो. सो तुम तीनों की क्लास में ले लूंगा अलग से ऑन अ कॉल. ठीक है, ओके. कोई और क्वेश्चन है किसी को? ऑल गुड लग रहा है. दक्ष, नो क्वेश्चन? सर एक है. हाँ पूछ ना, दो पूछ, दो. नहीं सर, जैसे अभी मैं ऐसे है कि जैसे अभी मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, पोज करते हैं तो अपनी जो होते हैं ना, आवाज नहीं आ रही, ऐसे करके होते हैं. फिर से हेलो, बोलो. अब आ रही है मैम? हाँ आप पक रहा था आपका, हाँ बोलो. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. मैं ये बोल रहा हूँ कि अपन जैसे मैं अभी वर्कआउट करता हूँ, वो कूल डाउन करते हैं
और जैसे जब मैं मेरे एंकल्स को, जैसे बेबी वेट ढालते हैं अपना, इस पोजीशन में होते हैं ना मैम, तो एंकल में थोड़ा पेन सा होता है। मेरे है ना अभी इंजरी हुई थी, मैंने फिजियोथेरेपिस्ट को भी दिखाया था, तो तब उन्होंने रिहैबिलिटेशन था, ऐसे एक्सरसाइज वगैरह बताई थी, तब ओके था। पोज वगैरह करता हूँ या फिर एक करके एक्सरसाइज होती है एक, तो वो करता हूँ, तब है ना थोड़ा ऐसे पेन होता है, तो उसको ऐसे सेंसेशन। आप क्या काम दक्ष, करते रहते? एक मिनट मैम, दक्ष तुम्हारी आधी आवाज समझ आई है, क्योंकि मेरे को भी समझना है क्वेश्चन। सो आई वुड से कि थोड़ा फास्ट बोल और अपनी या फिर वीडियो बंद कर। मैसेज या फिर टाइप कर देने बोलो उसको चैट पे। टाइप तो थोड़ा इसको टाइम लग जाएगा। अपना वीडियो बंद कर, फिर से क्वेश्चन बोल। और सैजन प्लीज यहाँ पर आ जा, मैं को ले ले। बोलूं? अब बोलो सर। हाँ है ना? हाँ, तो जैसे मेरे अभी लास्ट ईयर इंजरी एंकल के अंदर, लाइक स्लाइड टैकल दे रहा था तो पैर ऐसे फंस गया था, तो बॉडी का वेट एक तरफ हो गया था और एंकल एक जगह लॉक हो गया था। तो उसके बाद मतलब पैर के अंदर स्वेलिंग वगैरह आ गई थी, तो मैंने फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाया था, तो उसने एक रिहैब वाली एक्सरसाइज बताई थी, ओके हो गया पैर अब। लेकिन जैसे बेबी पोज हो, नॉर्डिक हो गया, जिसमें एंकल्स पे होते हैं, जाते हैं फिर वापस आगे लाते हैं। हाँ, तो वो करता हूँ। तो ये लेफ्ट पैर पे इंजरी हुई थी, तो इस पीछे जो होते हैं ना एंकल, मतलब हैमस्ट्रिंग से अपन पे, तो सा फील होता है थोड़ा, मतलब एक ऐसे सकते बियरेबल पेन होते हैं, ऐसे सेंसेशन टाइप। तो उसको कैसे क्या कर सकते हैं? मेरे को तो इतना समझ आया कि तेरी एक इंजरी हुई थी एंकल में, एंड विच इज ऑलरेडी रिकवर्ड, और फिर उसके बाद अभी भी तुम्हें उसमें पेन आता है, समहाउ कोई ना कोई पेन आता है, राइट? हाँ वो कोई बेबी पोज करता है तभी, आई थिंक। हाँ, तो जोन सा भी पोस्ट हाँ करता है, मैम। आई थिंक व्हाट आई बिलीव, आई थिंक कि तेरी अभी इंजरी फुली रिकवर्ड नहीं हुई है। योर स्टिल जहां तुम्हारे पेन होता है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारी काफ में पेन होता है या एंकल में पेन होता है, और जो मसल उसको सपोर्ट करती है वो अभी वीक है, दैट्स व्हाट आई फील। सो थोड़ा डिटेल में मेरे ख्याल से, आई मीन लाइक जो तेरी आवाज नहीं आ रही है अभी ढंग से मेरे को, तो आई बिलीव तू मेरे को बता सकता है, एंड वील गोना लुक फॉर अ एक्सरसाइज अबाउट इट, बिकॉज कोई यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, खुशहाली मैम इज अ न्यूट्रिशनिस्ट, ठीक है? सो आई एम गोना डिस्कस विद अ physiotherapist, a professional one, who can give the special designed exercises for that. So ये definitely तो हमारा जो ग्रुप है उसमें ये वाला टेलीग्राम वाला नहीं, जो हमारा व्हाट्सएप हाँ वाला जो सर। कोचिंग वाला पहले से है, मेंटोरिंग वाला, उसमें अपनी मैसेज में एक बार लिख देना, so that I can forward it to the professional physiotherapist, so that we can find a proper solution for it. ठीक है सर? मानव सिंह ने क्वेश्चन पूछा है चैट पे कि besides carbohydrates and protein, ma'am, please tell us about which vitamins intake is essential for us to include in your diet. ठीक है, so basically vitamins like vitamin D, calcium और vitamin C, omega 3, ये सारे बहुत important है